بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا نام مشہور ہم نے جو ہے لیا تھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑا مشہور نام ہے، ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ ان کا ترجمہ قرآن پاک کا لکھا ہوا بہت مشہور ہے، اور تحریک ریشم رومال وہ بھی جو ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی چلائی ہوئی ہے۔ پچھلے سبق کے اندر کچھ تذکرہ ان کا آیا تھا، تھوڑا سا تذکرہ جو ہے ہم ان کا کر دیتے ہیں۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ دیوبند کے رہنے والے تھے، اس لیے دیوبندی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تو مکتب فکر کی وجہ سے دیوبندی کہا جاتا ہے، دوسرا جو ہے دیوبندی کی جو نیب پڑی ان جیسے حضراتوں کی وجہ سے جو ہے مکتب فکر جو دیوبند ہے اسی کی وجہ سے ان کی نیب پڑی ہے، دیوبند میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ہوا یہ جب 1857 کے اندر مسلمان شکست کھا گئے اور ہار گئے، ہارنے کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ پچھلے سبق کے اندر آیا تھا۔ اس جنگ کے بعد انہوں نے 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہ بات ہم نے جو ہے پچھلے بار بتلائی تھی، دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا قیام بھی اسی وجہ سے ہوا تھا کہ ہم جو وہاں پر بچوں کو طلبا کو پڑھائیں گے اور آزادی کی چنگاری ان کے اندر پیدا کریں گے، اور اپنا پورا نظام پورے جو ہے پلاننگ کے ساتھ جو ہے ہم اس کو کام کو کریں گے، اس لیے دارالعلوم دیوبند کی جو ہے بنیاد رکھی گئی اور قائم کیا گیا۔ تو 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا۔ اس میں جو پہلے شاگرد تھے وہ بھی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو پہلے پڑھنے والے تھے محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی جو ہے یہی دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خاص شاگرد تھے، ہاں یہ استاد ہیں ان کے۔ تو اس کے بعد جو ہے مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1877 کے اندر ایک تنظیم قائم کی، ثمرۃ التربیت۔ ایک تنظیم کا نام رکھا، ایک جماعت کا نام رکھا، جیسے وہ ساری جماعتیں بنتی ہیں نا، اپنے اپنے نام سنستھا ہوتی ہیں، سنستھا کا نام رکھ لیتے ہیں، سنستھا کا ہر سنستھا کا اپنا اپنا الگ جو ہے ایک کام ہوتا ہے۔ یہ جمعیت علماء ہند ہے اس وقت، اسی طرح کی جو ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تنظیم بنائی، ایک سنستھا بنائی، ثمرۃ التربیت۔ اس کے اندر بھی جو ہے لوگوں کی تربیت کی جاتی، اور جو ہے کس طرح ہمیں انگریز سے جنگ لڑنی ہے اور انگریز کو کس طرح جو ہے اس ملک سے بھگانا ہے، یہ ساری تربیت اور ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر سکھائی جاتی، کس طرح ہمیں جنگ لڑنی ہے، اور جو ہے سارے ہتھیار چلانا اور ساری چیزیں اس کے اندر سکھائی جاتی تھی۔ تو یہ تنظیم جو ہے وہ یہ سنستھا 30 سال تک چلتی رہی، اور 30 سال کے بعد جو ہے کمزور پڑ گئی اور جو ہے بالکل تقریباً ختم ہو گئی، کیونکہ انگریز کو جو بھی ڈاؤٹ ہوتا تھا کسی چیز پر اس کو جو فوراً اس پر روک لگا دیتے، پابندی لگا دیتے، یا جو ہے طرح طرح کے اس کو ختم کرنے کی ساری کوششیں کی جاتی تھی۔ اس کے بعد 1902 کے اندر جمعیت الانصار کے نام سے محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے ایک اور تنظیم بنائی، جمعیت الانصار کے نام سے جو ہے ایک اور تنظیم بنائی۔ اس کا مقصد بھی تقریباً جو ہے یہی تھا، جب یہ کمزور پڑ گئی، اس کو جو ہے بھنک ہو گئی انگریزوں کو، تو انہوں نے نام بدل کر جو ہے دوسری تنظیم بنائی جس کا تقریباً یہی کام جو ہے تھا، لیکن انگریزوں کو اس کی پتہ چل گیا، تو 1913 کے اندر اس تنظیم کو بھی انہوں نے بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد 1914 کے اندر 1913 کے اندر بند کیا، 1914 کے اندر ہوا یہ کہ اس وقت پہلی ورلڈ وار یعنی پہلی عالمی جنگ جو شروع ہو گئی، جو سب سے پہلی ورلڈ وار ہے، پہلی جو ہے عالمی جنگ وہ شروع ہوئی۔ وہ کس کس کے درمیان؟ انگلینڈ، روس اور فرانس، یہ تینوں ایک طرف تھے، دوسری طرف ترکی اور جرمنی تھے۔ جو خلافت عثمانیہ آپ نے دیکھی ہو تو گل والی نا، تو وہ اسی وقت جو شروع ہوئی 1914 کے اندر، اور 1923 کے اندر جو ختم ہو گئی، ترکی ہار گیا، اور ترکی انہوں نے پابندی لگا دی تھی، جو اب جا کر 2023 کے اندر 100 سال بعد جو ہے وہ پابندی ختم ہوئی ہے۔ اسی وقت جو ہے خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، دنیا میں سے خلافت کا جو ہے نام و نشان سب ختم ہو گیا۔ تو اس وقت جو ہے ورلڈ وار شروع ہو گئی، برطانیہ، روس، فرانس اور ترکی کے ساتھ جو جرمنی بھی تھا، پوری خلافت عثمانیہ کی جو ہے جنگ شروع ہوئی۔ اسی وقت میں مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے موقع کا جو ہے مناسب سمجھا اور موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا، کیونکہ جو پہلی ورلڈ وار ہو رہی ہے ترکی سے، وہ کس سے ہو رہی ہے؟ انگلینڈ سے ہو رہی ہے، وہ بھی انگریزوں سے ہو رہی ہے، برطانیہ سے،
और जो हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं ये बरतानिया से लड़ रहे हैं। अब जो है मौका हाथ आया कि अगर ये भी इन्हें अंग्रेज पर हमला करते हैं हिंदुस्तान वालों पर, फिर हम तुर्की वालों की मदद करते हैं, इस तरह हो सकता है, और तुर्की वाले जो है हमारी मदद करें। तो इसी तरह जो है शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जो है अपने प्लानिंग करनी शुरू कर दी। तो मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो थे उनके शागिर्द थे मौलाना उबैदुल्लाह साहब सिंधी रहमतुल्लाह अलैह। इन शागिर्द को मौलाना महमूदुल हसन साहब ने काबुल भेजा। ये काबुल के अंदर जो बादशाह है, वहाँ का जो गवर्नर है, वहाँ आप जाओ, उससे बात करो, उसको जो है अपने फेवर में लो और उन सबको जमा करो, ताकि पूरे अगर हम हिंदुस्तान के अंदर मेहनत करें, पूरे हिंदुस्तानियों को साथ लेकर हम हर जगह जो बगावत, हर जगह जंग छेड़ेंगे और बाहर से भी हमला होगा। तो इस तरह जो है अंग्रेज जब दोनों तरफ से हमले में आएंगे तो जो है इस मुल्क को छोड़कर भाग जाएंगे, वहां जाएंगे, हमारी जीत हो जाएगी, जो है हम इसको जीत लेंगे। मौलाना उबैदुल्लाह साहब सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को जब काबुल भेजा तो वहाँ मौलाना बरकतुल्लाह साहब वहाँ मौजूद थे, एक थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये वहाँ मौजूद थे। ये तीन आदमी को जो उन्होंने कमेटी बनाई और इन तीनों को मशवरा करा, भाई आप जो वहां से दूसरे मुल्क का दौरा करें, दूसरे मुल्क वफद भेजें और जो है वहां से अपने दूसरे मुल्क वालों को, खासतौर तुर्की वालों को भी और दूसरे मुल्क वालों को अपने साथ लें। वहां से बाहर से वो अंग्रेजों पर हमला करेंगे और अंदर से जो है हम हमला करेंगे। तो इस तरह जो है हमें कामयाबी इंशाल्लाह मिल जाएगी। हुआ ये मौलाना बरकतुल्लाह साहब, राजा महेंद्र प्रताप और जो है मौलाना उबैदुल्लाह साहब सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, तीनों की मीटिंग हुई और उन्होंने वफ्द अपने साथ एक जमात, तीन जमातें बनाई। तीन जमातों को, एक को रूस भेजा, एक को जापान भेजा और एक को तुर्की भेजा। तो इन मुल्कों में जाओ, वहां के बादशाहों से और वहां के जो है गवर्नरों से बात करो, उनको अपने फेवर में लेकर, उनको अपने साथ लेकर जो इंग्लैंड के खिलाफ उनको महादाराई पर तैयार करो, उनसे लड़ने के लिए तैयार करो। लेकिन एक बदनसीबी ये हुई कि वो तीनों वफद जो पकड़े गए, वो जा रहे थे तो, क्योंकि जासूसी बड़ी तेज थी अंग्रेजों की, जासूस की जमाती सीआईडी जो थी कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ जो है हमारे खिलाफ बगावत हो रही है, साजिश हो रही है, उसे बहुत पैनी नजर जो है ये लोग रखा करते थे अंग्रेज। तो इसी तरह जो तीनों वफद जो है ये पकड़े गए। पकड़ने के बाद यहाँ ये चलता रहा। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो अरब पहुंचे, हिजाज जो इस वक्त अरब को हिजाज कहा जाता था, सऊदी अरब जो इस वक्त मौजूद है उसका नाम पहले हिजाज था, अल्लाह के रसूल के जमाने में भी उस वक्त तक भी। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ने अपने शागिर्द को दूसरी तरफ भेज दिया और अपने आप जो है खुद निकलकर हिजाज गए। वहां जो हिजाज का गवर्नर था, क्योंकि खिलाफत किसकी है, खिलाफत उस्मानी है, जो मुस्लिम ममालिक है सारे एक साथ हुआ करते थे खिलाफत के अंदर, उसमें अलग से कोई बादशाह और अलग से जो है कोई हुकूमत नहीं थी। क्योंकि तुर्की का बादशाह उसी की तरफ से जो है मदीने के अंदर और मक्का के अंदर गवर्नर मौजूद है। तो उस वक्त वहां का गवर्नर था गालिब पाशा मदीने का। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो है मदीने गए, मदीने में गालिब पाशा जो है उसको अपनी सारी प्लानिंग बताई और कहा भाई हम जो तुर्की की मदद करेंगे, आप क्योंकि आप भी बरतानिया से लड़ रहे हैं और हम भी जो बरतानिया से लड़ रहे हैं, तो हम दोनों का दुश्मन एक है। हम आपकी मदद करते हैं, आप हमारी मदद करें। हम हिंदुस्तान के अंदर जो है अंदर से जंग कर रहे हैं बरतानिया को हराने के लिए, आप जो है हिंदुस्तान के अंदर आकर जो है बाहर से अंग्रेजों पर जंग करें। इस तरह जब हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे तो दूसरा फिर तुर्की के अंदर भी जो हम आपकी उसके अलावा भी मदद जो होगी वैसे वो भी करेंगे पहले, और जो हम आजाद हो जाएंगे तो उसके बाद भी जो है आपकी मदद करेंगे। तो गालिब पाशा ने जो है इसका वादा किया कि मैं जो आपकी मदद करूंगा और जो है इसी तरह इंशाल्लाह हम करेंगे। और गालिब पाशा ने जो है खत भी लिखा। उसके बाद हुआ ये कि उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह जो थे काबुल के अंदर, क्योंकि इन्होंने वफद बनाए, वफद जो है इन्होंने 3 जगह भेजे और वफद पकड़े गए। तो उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने एक खत लिखा और खत में जो है सारी डिटेल, क्योंकि हिंदुस्तान के कौन से इलाके में कितने हमारे सिपाही हैं और कितना हमारे पास हथियार है और क्या कहाँ हम लड़ना चाहते हैं और कहाँ हम जो है उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, ठीक है। और जो है हमारे 3 वफद थे, ये जो है हमारे 3 वफद पकड़े गए। सारी डिटेल से जो है उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने एक खत लिखा। वो खत 3 जगह भेजा। एक खत तो उन्होंने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा, जो उस वक्त जो है मदीना और मक्का के अंदर थे, यानी अरब के अंदर थे। अरब तो वहाँ एक खत जो है उन्होंने यहाँ शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा और एक खत जो है उन्होंने हिंदुस्तान में भेजा, सिंध के अंदर। उनका मौलाना का नाम मुझे जो है फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा।
और एक जगह उन्होंने और खत भेजा। तो उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने रेशमी रुमाल के ऊपर जो है खत लिखा था। तो तहरीक रेशमी रुमाल आपने सुनी है ना। तो मुख्तसर जो है इसका बायोडाटा और जो है मुख्तसर नक्शा इसका ये है। तफसील तो और भी है, तफसील में क्योंकि बड़ा वक्त लगता है। तो उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 खत लिखे रेशमी रुमाल के ऊपर, क्योंकि आम कागज पे लिखेंगे तो कहीं भी तलाशी होगी तो पता चल जाएगा भाई क्या है कागज के अंदर, फौरन खोल के देखा जाएगा। रेशमी रुमाल पे जो है ये शक नहीं होगा। तो उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने रेशमी रुमाल के ऊपर खत लिखा और वो खत अपने शागिर्द मौलाना अब्दुल हक साहब को दिया, जो उनके जो है बहुत काबिल एतमाद शख्स थे। तो मौलाना उबैदुल्लाह साहब सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना अब्दुल हक साहब को वो खत दिया और कहा आप जो इसको सिंध लेकर जाएं, सिंध पहुंचाएं, वहां से जो है उनसे एक पर्ची लिखवाएं कि हाँ मेरे पास पहुंच गया, पर्ची मुझे ला कर दें। फिर जो है दूसरी जगह दूसरे खत भेजेंगे, आपको भेजेंगे, इस तरह उनका जो है निजाम होगा। तो अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह जब जो है खत लेकर गए तो हिंदुस्तान में आने के बाद एक जगह आकर रुके जहाँ इनके एक दिल अजीज उनके जानने वाले शख्स मौजूद थे, इनका नाम था रब नवाज। इनके पास आए, इनके घर ठहरने के बाद जो है बातचीत हुई और उन्होंने कहा भाई क्या आपके जो है हालात चल रहे हैं, क्या निज़ाम चल रहा है, किस तरह आप जो है काम कर रहे हैं। तो अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह जो थे उन्होंने रब नवाज को सारी डिटेल बता दी, इस तरह जो है हमारे सारा निज़ाम है। इस तरह जो है उबैदुल्लाह सिंधी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है उन्होंने मुझे खत देकर भेजा है रेशमी रुमाल पे लिखकर, और मैं ये खत जो है सिंध के अंदर लेकर जा रहा हूँ और ये खत जो है शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के पास भी जो है पहुंचना है। रब नवाज जो था ये अंग्रेज से मिला हुआ था, अंग्रेज का जासूस था ये रब नवाज। तो अब्दुल हक से जो सारी डिटेल नवाज ने निकलवा ली, क्योंकि अब्दुल हक सोच रहे थे कि हमारा आदमी है रब नवाज, तो इसको जो है अब्दुल हक ने सारी डिटेल रब नवाज को बता दी। तो रब नवाज ने जो है सारी डिटेल अंग्रेज को बतला दी। अंग्रेज को जब बतलाई तो अंग्रेज को जो गवर्नर था उसने इसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब ये खत और कहीं पहुंचा, ये डिटेल और कहीं पहुंची, तो जो दूसरा कमांडर था उसने बड़ी सख्ती से लिया। तो खत उर्दू के अंदर था, फिर उसका अंग्रेजी के अंदर तर्जुमा कराया और फिर सारी डिटेल ली और कहा तो बड़ी खतरनाक जो है ये साजिश है हमारे खिलाफ। अगर वो यानी जो इनका प्लानिंग थी वो कामयाब हो जाती तो हिंदुस्तान उसी वक्त तकरीबन जो है आजाद हो जाता है। लेकिन बदनसीबी की वजह से जो है ये खत पकड़ा गया और अपने की गद्दारी की वजह से जो है सारा निजाम धर्म वरम हो गया और इस वजह से जो है तकरीबन 220 लोगों को जो है अंग्रेजों ने इस वजह से जेल के अंदर डाला। नहीं, बगावत के जुर्म में और साजिश के जुर्म में जो है 220 लोगों को जो है अंग्रेजों ने जेल के अंदर डाल दिया, जिसमें जिसका नाम था जो साजिश के अंदर जो है मुलविस थे और साजिश के अंदर वो लोग मौजूद थे, सबको जो है पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया। और उसी खत की वजह से जो है मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी उनके सामने आया। तो सामने आया तो अंग्रेजों ने अपना एक वफ्द जो है मक्का के अंदर भेजा। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह तो अरब के अंदर थे ना, अरब के अंदर वहीं गए हुए थे, वहीं अपनी सारे निज़ाम और सारी जो है तैयारी के लिए तो वहीं रुके हुए थे, वहीं अपनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब ये तहरीक रेशमी रुमाल का पर्दाफाश हो गया और ये जो है रेशमी रुमाल पकड़ा गया और खत अंग्रेजों को मिल गए, तो यहाँ के जो लोग थे उनको भी जो है उन्होंने जेल में डाल दिया पकड़ के, और फिर गिरफ्तारी के लिए जो है मक्का के अंदर अपना एक पूरी जो है टीम उन्होंने भेजी, जहाँ से मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह को जो है ये पकड़कर जेल के अंदर लेकर आए। और यहाँ से कई मुल्कों में होते हुए जो है इनको माल्टा काले पानी की जेल के अंदर मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह को जो रखा, वहाँ तकरीबन 3 साल जो है कैद के अंदर रहे। कैद का वाक़या पिछले दफा भी आया था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो मौलाना अरशद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हैं, जो फिलहाल जिंदा है ना, मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम, उनके वालिद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो मौलाना महमूद साहब के शागिर्द थे। साथ में जो जेल में रहे और जेल में जो इनके साथ सारे सबूत थे उन्होंने बर्दाश्त की। ये मुख्तसर जो है मुसलमानों की कुर्बानी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने मुसलमानों की कुर्बानी याद करने की और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।